नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। सालानपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सालानपुर थाना क्षेत्र के बंजेमारी इलाके में छापेमारी कर सुमन दत्ता और चंदन रुद्रा नामक 2 व्यक्तियों को 1 किलो 800 ग्राम भारत में प्रतिबंधित फेंसिडिल सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक ये दोनों व्यक्ति सालानपुर इलाके के कुख्यात चोर हैं। सूत्रों के मुताबिक सालानपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद बुधवार रात को बंजेमारी इलाके में पुलिस ने दबिश डाली और प्रतिबंधित सिरप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हुआ है कि ये दोनों व्यक्ति सालानपुर आकर प्रतिबंधित सिरप की तस्करी का कारोबार किया करते थे। पुलिस ने आज दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों को आसनसोल अदालत में पेश किया और अब पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि इस पूरे गोरख धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं। आसनसोल लोकसभा अंतर्गत बाराबनी विधानसभा इलाके में भाजपा द्वारा उनके युवा मोर्चा नेता खोकन महाराज पर TMC द्वारा हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि TMC से जुड़े असामाजिक तत्वों द्वारा बुधवार दोपहर को खोकन महाराज पर हमला किया गया। जब उनकी पत्नी उन्हें बचाने गई तो उनकी पत्नी को भी बुरी तरह से पीटा गया। घटना को लेकर बुधवार रात बाराबनी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इस संदर्भ में जब हमने बाराबनी TMC अध्यक्ष असित सिंह से बात की तो उन्होंने TMC पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ग्रामीण विवाद है जिसका TMC से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही पक्षों द्वारा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। কালকে ভোটের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়েছে। আমাদের যুব মোর্চার ভাই খোকন মহারাজ, তার দোষ কি? সে বিজেপি করে, সে কনিষ্ঠ কর্মী বিজেপির। এর আগেও তার উপর অ্যাটাক করা হয়েছিল। আজকে দেখুন এমনভাবে অকথ্যভাবে মারা হয়েছে, বাড়ির মহিলাদেরকে পর্যন্ত মারা হচ্ছে। আমাদের এদের দোষ কি? যে বিজেপি করে, শুধু এটাই দোষ? গণতন্ত্রে কি বিজেপি করা পাপ? আজকে দেখুন সে কি করেছে, তার দোষ কি? কোনো পার্টিকে কেউ ভোট দিতে পারে, কেউ পার্টি করতে পারে, কই আমরা তো কারোর উপরে এমনি করি না কখনো। তাহলে আজকে এই ধরনের যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে, প্রশাসন এখানে কি করছে? আগের বারও হয়েছিল, এই ছেলেটার উপর হয়েছিল। কারণ এইটাকে পার্টিকুলার এইখানকার যারা আছে তাদেরকে ইচ্ছে করে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কে প্রশ্রয় দিচ্ছে? প্রশাসন প্রশ্রয় দিচ্ছে। একটা ছেলের উপর বারবার কেন অত্যাচার হবে? সে কি দোষ কি করেছে? সবাই বলুক তো এখানে তার দোষ কি? সে বিজেপি করে, সে বিজেপি করতে পারে না? কে কোনো পার্টি করতে পারে? প্রশাসনকে যদি সংসার চালাতে দেওয়া হয় তাহলে এইরকম হয়। এই হচ্ছে ওর কোনো দোষ নাই, দোষও শুধু বিজেপি করে। উচিত এখন কি হবে ওকে? কিছুই না, আমরা এসছি ওর সঙ্গে দেখা করতে। দেখুন না আপনারা, দেখুন এগুলো কি, এটা কি হয়েছে দেখুন, কিভাবে মেরেছে দেখুন, কিভাবে রক্ত বেরোচ্ছে দেখুন, পায়ে দেখুন কিভাবে মেরেছে, কিভাবে মারছে, মহিলাদেরকে মারছে দেখুন, মহিলাদেরকে মারছে, মেয়েদের আব্রুতার উপর হাত উঠছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের কালচার, এটা বাংলার কালচার। ঘর থেকে টেনে নিয়ে এসে, ঘর থেকে টেনে এনে পরে মারছে, বার করে মেরেছে আমাদেরকে, আমারকেও মেরেছে। আপনি বলুন, আপনারা বলুন, এটা তারা কি করতে পারে না? তারা কি নিজের মতন নিজে পার্টি করতে পারে না? আমরা বিজেপি করে বলে আমাদের উপরে এইভাবে অত্যাচার। এর আগেও বিকশিত ভারত গাড়ির উপর অত্যাচার হয়েছিল, অ্যাটাক হয়েছিল, তার ড্রাইভারকে অত্যাচার করা হয়েছিল, কিভাবে মারা হয়েছিল, লাইট ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এই জায়গায়। কাল রাতে এত বোম ফাটিয়েছে, ঘরে সুদ্ধা ছুড়ে দিয়েছে, দরজা জানলা সব ভেঙে দিয়েছে, দরজাটা ভেঙে দিয়েছে। কি আমি রিয়া মহারাজ, কাজী ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রি মাস্টার্স করছি।
আমরা সব বাড়িতে দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়া হয়, বাবা খেয়ে দিয়ে শুয়ে আছে আর এইখানে খুব ঝামেলা হচ্ছিলো। বাবা বলছে কিসের ঝামেলা হচ্ছে আমি জানি না, বাবা ছেড়ে দে বাবা। আমরা সবাই দরজা বন্ধ করে ঘরে ছিলাম, ওরা কতগুলো ছেলে মিলে ঢুকেছে, দরজা ভেঙে ঢুকেছে এখানে হ্যাঁ আমাদের ঘরের ভেতর গেছে, হাতুড়ি রড যা পেরেছে হাতে নিয়ে গেছে বাবাকে মার্ডার করবে বলে। আমরা যে আটকাচ্ছি আমাদেরকেও বলছে খুন করবো তোদেরকেও। কত ওরা অনেক ছিল, 7-8 জনের মতন ছিল। কটার ঘটনা এটা? এটা ঘটনা 2টো থেকে 3টের মধ্যে ঘটনা ঘটেছে, ম্যাক্সিমাম 2টো 2:30টা। তো এখন কি পালিয়ে গেছে তারা? জানি না, ওরা ওইদিকে মদের আসর বসিয়েছে। এবার রাজনীতি যেটা জিতি ব্যাপার আছে, ওরা নিজেদের আনন্দ করছে, করুক। এইভাবে ঘরে ঢুকে অত্যাচার করছে, ওদের ধারণা যে আমরা ওদের বিপক্ষে কোনো প্রার্থীকে ভোট দিয়েছি। এটার কোনো প্রমাণ তো ওদের কাছে নেই। আমার বাবা বরাবর তৃণমূলের সাপোর্টার, তৃণমূলকে সাপোর্ট করে গেছে, কিন্তু 2019 নাগাদ আমরা যখন নিজেদের গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পর আমার বাবাকে বললাম রাজনীতি আর করার দরকার নেই, রাজনীতি থেকে সরে আসো, রাজনীতিতে প্রচুর ঝামেলা থাকে। বাবা সেগুলো ছেড়ে দিয়েছে, বাবা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। সন্ধ্যে 7টার মধ্যে বাবা নিজের কাজকর্ম কমপ্লিট করে চলে আসে বাড়িতে। আমরা নিজেদের মতন ইউনিভার্সিটি যাই, পড়াশোনা করছি, আমরা পরীক্ষাগুলো দিচ্ছি নিজেদের পায়ে দাঁড়ার জন্য। ওরা ওদের ধারণা যে আমার বাবা বিপক্ষে ভেবে ভোট দিয়েছে, আমরা সবাই সাপোর্টার, ওরা আমাদেরকে সেই জন্য মারধর করছে। আমরা ওদের সাথে কথা বলি না, আমার বাবা বিজেপিকে এখন নাকি সাপোর্ট করছে আড়ালে, ওদের এটা ধারণা। আর এই ধারণা নিয়ে ওরা আমার বাবার গায়ে হাত তুলতে এসেছে, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ ওদের কাছে নেই। তাহলে খোকন মহারাজের উপরে যে ইয়ে হয়েছে ওইটার সঙ্গে কি তোমাদের কোনো ইয়ে নেই? না, আমার সঙ্গে কোনো অস্তিত্ব নেই, কোনো অস্তিত্ব নেই ওদের সাথে। আমার বাবা আগে পার্টিতে ছিল, এখন নেই, ওদের ওটাই রাগ। কোন পার্টি করতো আগে? আমার বাবা তৃণমূলে ছিল, এখন আর নেই, কোনো পার্টিতেই নেই। আমার বাবা এখন বিপক্ষ থাকে, কোনো কিছুতেই নেই। ভোট দেওয়া হলে তৃণমূলকেই দিই আমরা। বাবার নামটা কি আছে? মহাদেব মহারাজ। যে তৃণমূলের নেতারা আমাদের ঘরে হামলা করেছে, মদ খেয়েছে, নিয়ে হামলা করেছে, আমার স্বামীকে মেরেছে, আমাদের দরজা ভাঙচুর করেছে, আমাকে মেরেছে, গায়ে হাত দিয়েছে। কখন হয়েছে ঘটনাটা? হয়েছে ওই 2টোর সময়। কতজন এসেছিল ওরা? ওরা অনেকজনেই ছিল, 10 জনের মতো। হঠাৎ এসে ঝামেলা করেছে? হ্যাঁ, হঠাৎ এই বাইরে এসে গালাগালি করছিল, মদ খেয়েছিল। আমরা বাড়িতে ভাত খাচ্ছিলাম আর ওরা বাইরে এসে গালাগালি করছিল, আমরা বাইরে বেরোলাম, তারপরে ওই হামলা করছিল। কোথাকার ছেলে ছিল ওরা? এই গ্রামেরই ছেলে, একজনাকার নাম নুনু আর একজনাকার নাম রাখাল, জিতুয়া আর কে ছিল, কালো সোনা, শিবেন। এরা কেন এরকম কেন করলো হঠাৎ? আমরা বিজেপি করি, ওরা জিতেছে ওই জন্য। আমরা হেরে গেছি, আমরা বিজেপি করি, ওরা তৃণমূল করে, ওরা জিতেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম অমৃতা মহারাজ, আমার স্বামীর नाम खोकन महाराज। बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्थो भौमिक की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था। इस विजय जुलूस से उपद्रवियों ने बैरकपुर वार्ड नंबर 24 में बाबू नंदी के घर पर हमला बोल दिया। यही नहीं, भाटपाड़ा के वार्ड नंबर 17 मोमिनपाड़ा में भी एक घर पर एक साथ कई बम धमाके हुए। ये समाचार सुनते ही अर्जुन सिंह पीड़ित के घर गए और घर के लोगों से मुलाकात की। वहीं टीएमसी सांसद पार्थो भौमिक ने कहा कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। पार्थो भौमिक बैरकपुर के शंखबनिक कॉलोनी आए और घर के लोगों को आश्वासन दिया। पार्थो भौमिक ने कहा कि बैरकपुर के भाटपाड़ा में हुए हमले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कई और लोगों की तलाश कर रही है। उन्होंने आज आकर कहा कि आप चाहे कोई भी राजनीतिक दल के हों, अगर कोई आपको परेशान करेगा तो प्रशासन उससे निपटेगा। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी का नारा था गुंडा राज नहीं, शांति चाहिए, इसलिए मैं ऐसे अन्याय करने वालों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। पार्थो भौमिक के आश्वासन से परिवार काफ़ी हद तक आश्वस्त है। উনি সংসদ হয়েছেন, উনি আশ্বাস দিলেন, ভালোই। এটা তো উনি এখানকার অভিভাবক হলেন, নিশ্চয়ই আশ্বাস দিয়েছেন, ভালোই লাগে। থানাতে অভিযোগ জানিয়েছেন, পুলিশের ভূমিকা কি বলবেন? হ্যাঁ, পুলিশ তার কাজ করছে। প্রথমের দিকে প্রথমের দিকে তিনি কোনো স্টেপ নিচ্ছিলেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে
হ্যাঁ, প্রথমের দিকে তিনি কোনো স্টেপ নিচ্ছিলেন না। এখানে এসে বলে গেছিলেন থানায় যাও। তারপর কিন্তু থানায় অত রাতে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তো তারপর সকালে তারপর 12টার সময় পুলিশ আসে, এসে তারপর সব কিছু চেক করে যায়, বলে আপনি সকালে আসুন, আপনাকে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো, আপনি প্রয়োজনে পুলিশের গাড়িতেই আসবেন, এসে নিয়ে যাবেন। তখন তিনি বললেন যে তখন আমরা গেলাম থানায়, তাদের নামে কমপ্লেন করলাম, যারা করেছে তাদের এভিডেন্স দিলাম। দেওয়ার পর শুনলাম কালকে রাত্রে নাকি অনেকে অ্যারেস্ট হয়েছে, আরও 2 এখন অ্যারেস্টেড হয়েছে। পার্থ ভৌমিক আসলো আজকে, আশ্বস্ত হলেন আমার কথা? দেখুন, সকাল থেকে অনেকেই আসছে, যেটা হওয়ার তো আমার হয়ে গেছে, সেটার ক্ষতিপূরণ তার কেউ দিতে পারবে না। যেটা হওয়ার, আজকে যদি আমার বাড়ির মহিলাদের সেই ছেলেগুলো এসছিল, যারা তৃণমূল দুষ্কৃতী যারা এসছিল, ওরা যদি মুসলিম ছেলেরা এসেছিল, যে আমার বাড়ির মধ্যে উঠে গিয়ে বাই চান্স একটা মেয়েকে যদি ক্ষতি করে দিত, তখন আর সে যেই আসতো তখন তার আমার কোনো কিছু করার থাকতো না, তাই না? আশ্বস্ত হলেন? হ্যাঁ, হয়তো কিছুটা মনের বল পেলাম। সেটা সবাই এসছে, অর্জুন সিংজিও এসছে, পার্থভৌমিক স্যারও এসছেন, উত্তম দাস ডিপু এসছেন, কাউন্সিলরও পার্থভৌমিক এসছেন। কি বলে গেল আপনার? হ্যাঁ, পার্থভৌমিক কি বলে গেল? পার্থভৌমিক বলে গেল যে আপনি যে দল করছেন করুন, এর দায়িত্ব আমাদের। রাজনৈতিক দল যার যার নিজের মতো ব্যাপার, আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটা করতেই পারেন, এরপর আর কোনো কিছু হবে না। দেখা যাক এবার কী হয় কী না হয়, সেটা সময় আমার নাম রণজিৎ নাথ। কালকে রেজাল্ট বেরোনোর পর সারা ব্যারাকপুরের মধ্যে 3টে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। একটা আমি নিজেই বলে দিয়েছি, ভাটপাড়ার 33 নম্বর ওয়ার্ডে একটা বাড়িতে এরকম হয়েছে, আর ব্যারাকপুরের 24 নম্বর ওয়ার্ডে এই আজকে এখন যেখানে আছি এই বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটেছে। আর ভাটপাড়ার মমিনপুর বলে একটা জায়গা আছে, মমিনপাড়া, সেই মমিনপাড়াতে কাল রাত 1টার সময় 2টো বোম পড়েছে। রেজাল্ট বেরোনোর পর টোটাল ব্যারাকপুর লোকসভার মধ্যে 3টে ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু ভাটপাড়া 33 নম্বরটা আমার বাড়ির কাছে, আমি রাত্রেই ওনার বাড়িতে গেছিলাম, আর আমি ব্যারাকপুরের চেয়ারম্যান উত্তম দাসকে ফোন করে বলেছিলাম এই বাড়িতে আসার জন্য। ও বললো দাদা এত রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে যাবে। আজকে সকালেই ও এসছে, বাড়ির লোকের সাথে কথা বলে গেছে, এবং এই ঘটনায় পুলিশ অনেককে অ্যারেস্টও করেছিল। ভাটপাড়ার মমিনপাড়ার ঘটনা তো ইতিমধ্যে 12 জন অ্যারেস্ট, আরও অনেককে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি শুধু ওনাদের বলে গেলাম, আপনি নিশ্চিন্তে, আপনি যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করেন আপনি করুন, দায়িত্ব আমাদের মানে কেউ কোনো ঝামেলা করলে প্রশাসন তার মতো ব্যবস্থা নেবে। অর্থাৎ কাউকে এখানে 1 ইঞ্চি স্পেয়ার দেওয়া হবে না, যে কেউ অন্য রাজনৈতিক দলের কারোর উপরে কোনো অত্যাচার করবে, অন্যায় করবে কিংবা ভয় দেখাবে। অর্জুন সিং এসে বলে গেছেন সবটাই নাকি আপনার মদত এবং আপনার পরিকল্পিতভাবেই ঘটনাটা ঘটেছে। অর্জুন সিং আসলে নিজে 2019-এর পর যা অত্যাচার করেছিল, 6 জন মার্ডার হয়েছিল, 3 মাস ভাটপাড়ার সব দোকান বন্ধ ছিল, 3 মাস স্কুল বন্ধ ছিল, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, জগদ্দল, গারুলিয়া, হালিশহর, ফিডার রোড, প্রায় 1000 মানুষ বাড়ি ছাড়া ছিল। ওনার যে মনস্তত্ত্ব, সেই মনস্তত্ত্ব থেকে গণ্ডগোল করানোটাই ওনার মাথায় আসবে, যেটা বোধহয় ওরাই করে। আমার স্লোগান ছিল গুন্ডারাজ নয়, শান্তি চাই। যারা এই ধরনের নুইসেন্সি করবে আমি তাদের কাউকে অ্যালাউ করবো না, প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে শক্ত হাতে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833,
9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के नेशनल कमेटी के सदस्य शंकर चौधरी ने आज जीटी रोड के किनारे स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने आसनसोल लोकसभा केंद्र सहित पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आशानुरूप प्रदर्शन नहीं करने को लेकर कई बातें सामने रखी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसके उपलक्ष्य में मेरे प्रेस बंधु आप सभी को एवं संपूर्ण भारतवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने पूरी खुशियां है कि इस केंद्र में तीसरी बार बन रही है और उस खुशी में आप लोग भी सहभागी बने, आप लोग का भी मुंह मीठा कराए। इसी उद्देश्य से आप लोग को कार्यालय में सादर आमंत्रित किया गया है कि आप आए और हम लोग के खुशियों में आप अपना भी योगदान दें। 2019 में पूरे देश में और बंगाल में भाजपा में जो परफॉर्मेंस था उसके मुकाबले इस बार कहीं न कहीं पतन हुआ है। भाजपा को अकेले दम पे मेजॉरिटी नहीं मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, 2014-19 में अकेले दम पे आसनसोल भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी और केंद्र में भी हम लोग प्रथम बार एकक संख्या गरिष्ठ थे। द्वितीय बार भी हम लोग 303 सीट लाए थे। इस बार कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। यदि चूक नहीं हुई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के साथ मिलके जो सीट लाए हैं वो सीट नहीं आता, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस बार 300 पार होना चाहिए था, लेकिन कहीं चूक हुई है। इस कारण से हम लोग को सीट इस बार कम मिली है। चूक हो सकता है तो क्या लगता है? चूक यही हो सकता है, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में जो भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के लिए जीवन दिए थे, जीवन तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का काम किया, दिन रात पार्टी की सेवा की थी, वैसे कार्यकर्ताओं को साइड करके राजनीति, सपा, बसपा, डीएमके, एमके जितने भी पार्टियां भारत में विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जो लोग आए थे उनको ऊंचा स्थान, ऊंचा पद देना और निर्वाचन में प्रार्थी बना देना, ये हमारी लगता है कहीं भूल था। इस भूल के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो परफॉर्मेंस हुआ है ये थोड़ा पुअर हो गया। क्या
भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसने 2021 के विधानसभा चुनाव से सीख नहीं ली। 2021 में तो विधानसभा हुआ था, चुनाव से क्या सीख नहीं ली? क्योंकि तब भी वही हुआ था। देखिए, मैंने तो पहले भी प्रेस करके मैंने ये बात बोला था कि जब तक पश्चिम बंगाल की जब बात आप कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में जब तक पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिया जाएगा, पुराने कार्यकर्ताओं को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा, पुराने कार्यकर्ताओं से को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा बंगाल में। ये तो 2 बार 3 बार ये तो एक्सपेरिमेंट में पता चल रहा है। अब भी यदि सीख नहीं लगी तो 2026 होने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि यदि ऐसा नहीं किया गया, पुराने लोगों का सम्मान नहीं दिया गया, पुराने कार्यकर्ताओं को यदि आदर नहीं किया गया, उनको में से किसी को टिकट नहीं दिया गया, तो रिजल्ट आशा के अनुरूप होगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा सलवालिया जी ने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया था इसलिए हर अहलुवालिया जी के साथ मीटिंग हुई थी, प्राय 150-200 कार्यकर्ता को लेकर के मैंने मीटिंग किया था, अहलुवालिया जी को साथ में रखे थे कि अहलुवालिया जी आप आए, उन लोग से बात करें। कोई जो टीम आप देख रहे हैं, यही टीम 2014 में बीजेपी को बाबुल सुप्रियो को जिताया था, यही टीम 2019 में बाबुल सुप्रियो को जिताया था। और चूंकि 2021 में लोकसभा में जो बाई इलेक्शन था उसमें जो लोग तृणमूल से आए हुए थे उनके दायित्व था, उनके दायित्व में रिस्पॉन्सिबिलिटी के तत्वाधान में निर्वाचन किया गया था। रिजल्ट हुआ कि कॉरपोरेशन भी हार गए, पंचायत भी हार गए और लोकसभा भी हार गए। तो ये बहुत दुख की बात है कि जो लोग बाहर से आते हैं, दूसरे दलों से आते हैं, उनको संग संग ऊंचा स्थान और प्रार्थी बनाना ये हमारी बड़ी भूल हुई है। क्या आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं अपने आला? देखिए, इसके पहले अटल जी का एक वाणी था कि पुराने कार्यकर्ताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान करना चाहिए, और जो लोग दूसरे दल से आते हैं वो भी सम्मानित है, उनको भी सम्मान मिलनी चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और जल्दीबाजी के कारण ही हम आज इस नतीजे में पहुंचे हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार सरकार बनते बनते नहीं बन पाई। और आसनसोल भी आप लोग इस बार फिर से नहीं जीत पाए, जबकि 2 बार आप लोग जीते थे। आसनसोल की अगर से बात करें तो क्या गलती है? आसनसोल में देखिए, आसनसोल की जमीन भारतीय जनता पार्टी की जमीन है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में यहाँ का जनता प्रभावित है, और यहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के माइंडेड की होता है। इसलिए ये सीट अति महत्वपूर्ण है। जब 2 सीट जीते थे पश्चिम बंगाल में, तब 1 सीट दार्जिलिंग था और 1 सीट यहाँ था, आसनसोल था। 14 में जब जीते थे 2 सीटें, तब 1 सीट आसनसोल, 1 सीट वहाँ। इसलिए हम लोग लगातार जीतते हैं। इस बार भी परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ हमारा, जो 21 में हारे थे 3 लाख वोटों से अंतर से, इस बार हम लोगों ने 59,000 के वोटों से हारा है। किंतु हार तो हार ही होता है, चाहे 1 वोट से हारिए, चाहे 1 लाख वोट से हारिए। तो अहलुवालिया जी देखिए, यहाँ लोग को चाहता था लोकल कार्यकर्ता, लोकल नेता, लोकल प्रार्थी, जो पार्टी ने नहीं दिया। लोकल होना चाहिए था। आज आसनसोल जिले में लोकल यदि होता तो मुझे लगता है कि आसनसोल का रिजल्ट कुछ और होगा। दुर्गापुर में भी हमला, आसनसोल में भी हमला लगातार दुर्गापुर सीट, चूंकि अहलुवालिया जी का अपना सिटिंग एमपी थे, उन्होंने 5 साल कितना काम किया ये तो सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। उनको जितना समय देना चाहिए था समय नहीं दिया, वो ज़्यादा समय अपना दिल्ली में बिताते थे, कार्यकर्ता एवं जनता को ज़्यादा समय नहीं दे पाए। नतीजा हुआ वहाँ की जनता नाराज थी, और उनके नाराजगी का फल दिलीप दा को भुगतना पड़ा, दिलीप घोष को भुगतना पड़ा, तो वो सीट चला गया। वो चूंकि अहलुवालिया जी वहाँ से आसनसोल आ गए, तो
वो जो हवा था दुर्गापुर का, वो हवा आसनसोल में बह गया। नतीजा हुआ कि आसनसोल सीट भी हार गए। और अग्निमित्रा पाल चूंकि यहाँ से लड़ी थी, वो उनको मिदनापुर दे गया। चूंकि दिलीप घोष का वो अपना नेटिव प्लेस है, दिलीप घोष का अपना लोकसभा है, वहाँ उनको न देकर यहाँ से अग्निमित्रा पाल चली गई, तो वहाँ वो भी हार गई। यानी कि एक व्यक्ति 3 सीट को हरा दिया। ये सबसे दुख और दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति को सीट इधर से उधर करने में हार गया। तो क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग अपने आला कमान को ये संदेश देंगे कि किराए के सैनिक नहीं, अपने जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उन पर भरोसा रखें? हम लोग बार बार ये बात को बोल रहे हैं, बार बार, कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं को काम में लगाया जाए, उचित सम्मान दिया जाए, दायित्व दिया जाए, ताकि जनता को लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। लोग टीएमसी को नहीं चाहते हैं, टीएमसी को नहीं चाहते हैं, उसके कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं अंदर से, लेकिन बाध्य हैं उसको वोट दे रहे हैं। टीएमसी बीजेपी नहीं होनी चाहिए, बीजेपी बीजेपी होनी चाहिए, कि जो चेहरा बीजेपी का चेहरा होगा। टीएमसी का चेहरा बीजेपी का चेहरा नहीं हो सकता। और जब तक ऐसा होता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हारते रहेगी। इसलिए चेहरा भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। आपने कहा कि एसएस वालिया ने तो यहाँ पर भेजे कोई गलत डिसीजन है, लोकल कैंडिडेट देना चाहिए, तो उस समय आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आप लोग तो आवाज़ उठा सकते थे, दिल्ली तक पहुँचा सकते थे कि ये कैंडिडेट ठीक नहीं है। आज हारने के बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाने का? हम लोग आवाज़, हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। आज इतना देर क्यों हुआ? लोकल कैंडिडेट के चलते यहाँ पे बहुत लोग भी अप्लाई किए थे दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए अप्लाई बहुत लोग भी किए थे लोकल, और मैं भी चूंकि किया था। आपको तो पता ही होगा, कुछ बात तो बताई थी आपको मैंने, तो हम लोग भी किए थे, उसमें बहुत लोग आते थे, आसनसोल जिले से थे, मैं भी अप्लाई किया था और मेरे नाम से सर्वे भी हुआ था। 3 एजेंसियां सर्वे की थी और आसनसोल लोकसभा केंद्र के मैं कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो कार्यकर्ता ने मुझ पर विश्वास जताया था। और जितनी एजेंसियां दिल्ली से जो बात की थी उन लोगों से ओवर टेलीफोन, उनको उन्होंने कहा कि एकमात्र शंकर चौधरी या कार्यकर्ता है जो लोगों को सुख दुख में बगल में खड़ा रहता है। दिन हो या रात, शंकर चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ, ये सभी लोग जानते हैं। मैंने दिल्ली में भी कह के आया था, उन्होंने कहा कि आप शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ जाएं, बस कार्यकर्ता चाहता है, जनता चाहती है, जनता चाहती है लोकल कार्यकर्ता हो। मैंने बोला था कि आप आसनसोल लोकसभा केंद्र में जिससे पूछना है शंकर चौधरी की एक्टिविटी पूछ लो। दिल्ली में बोल के आया था। जितेंद्र तिवारी की काफी तेज चल रही थी। हवा तो जितेंद्र तिवारी की काफी तेज चल रही थी। हवा अपने से, देखिए, अपने से हवा बनाने से थोड़ी बनता है। हवा जनता को बनाना चाहिए, कार्यकर्ता को बनाना चाहिए। जब ऐसी बात थी तो सर्वे के अनुसार उनका नाम केंद्र में होना चाहिए था दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में शंकर चौधरी का नाम क्यों आया था? पार्लियामेंट्री बोर्ड जो पास किया था नाम, शंकर चौधरी का नाम था। वो दिल्ली कार्यालय, चूंकि मैं नेशनल कमेटी मेंबर हूँ, वो हमको संपर्क कर रहे थे कि आप तैयार रहो, नाम घोषणा होगी, आपने इलेक्शन लड़ना। तो नाम, मैं तो बीजेपी का सिपाही हूँ ना, जब तक नाम घोषणा ना हो तब तक मैं कुछ एक शब्द मुंह नहीं खोल सकता। मगर तिवारी जी के जो बात बोल रहे हैं, वो तो घूम घूम के पूजा कर रहे थे, वो व्यक्तिगत मैटर था, वो सोचते थे कि हो सकता है उनका हो जाए, लेकिन वो तो दिल्ली जिसको देगा उसका ही होगा ना। तो उस समय जो था, जो हमारा वहाँ नाम घोषणा नहीं हुआ, लेकिन नाम चल रहा था कि होगा। लेकिन तिवारी जी अपना यहाँ पर इतना प्रचार किए तो लगा उन लोगों को कि शुभेंदु अधिकारी जी भी, वो भी तिवारी जी के पक्ष में दिल्ली में अप्रोच कर रहे थे कि तिवारी को ही आसनसोल में होना चाहिए। लेकिन केंद्र सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा,
तो उन्होंने मेरा नाम ऑलरेडी तय कर चुका था। सर्वे में नाम यदि उनका आता तो उनका नाम होना चाहिए था ना, सर्वे में क्यों नाम नहीं आया? सारा जिला का कार्यकर्ता सभी ने एक ही नाम से बोला, एक सुर से बोला। अब मैं तो लिख के बता नहीं सकता, आप लोग भी पता लगा सकते हैं। सारे लोगों ने बोला था कि शंकर दा को ही टिकट देना चाहिए, दो की पुराने कार्यकर्ता। मंत्री मदन घटक ने कहा है कि एसएस अहलुवालिया के साथ में जब कांग्रेस के समय लड़े थे तो पैसे के बल पे एसएस अहलुवालिया लड़ते थे, इसके कारण उनकी हार हुई थी। ये मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पैसे के बल पर अहलुवालिया लड़ते थे कांग्रेस की तरफ से 1993 में जब वो खड़े थे, तो उस समय तो कांग्रेस में थे, हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई पैसा वैसा का बात था नहीं। इसी कारण इस बार भी वो इसी बल का उपयोग किए, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। नहीं, अभी तो पैसे का कोई मैटर नहीं था। पार्टी इलेक्शन लड़वा रही थी, पार्टी लड़ाई, जब टिकट उनको मिल गया, प्रार्थी हो गए, उनके पक्ष में हम लोगों ने पूरा जोर लगा के काम किया। मेरा 7 विधानसभा में प्रचार करने का दायित्व था, 7 विधानसभा प्रचार किया। मैं पुराने कार्यकर्ताओं को संगठित किया, सारे बात बताई। अहलुवालिया जी को लेकर के मीटिंग किया जिला कार्यालय में 200 कार्यकर्ताओं का, सबने बोला कि नहीं, हम लोग पूरा सब कोई मिल के इस बार भाजपा को जिताएंगे। तभी न जाके 3 लाख वोट से कम हो गए, 59,000 वोट आया। नहीं तो पुराने कार्यकर्ता पिछली बार जिससे बैठे थे, काम में नहीं लगाया गया था, तो 3 लाख वोट पहुंच गया था। अभी तो 2.5 लाख मेकअप तो किया हम लोगों ने। कम से कार्यकर्ता सभी ने काम किया है, पैसा का बल पर कोई नहीं किया। जो जितना पैसा खर्चा होना चाहिए उतना ही पैसा ही खर्चा हुआ, और उसी हिसाब से हम लोग इलेक्शन लड़े हैं। अब जनता कहा जा सकता है कि एसएस अहलुवालिया ने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया, जिसके कारण उनको हार कम। नजरअंदाज वो संगठन, इलेक्शन तो संगठन लड़ाती है, संगठन ने लड़ाया है, सारे कार्यकर्ता काम किए हैं। अभी आपने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं देखा गया। नहीं, मैं कहाँ बोला पुराने कार्यकर्ता को देखा नहीं गया। पुराने कार्यकर्ता को लेकर मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद चूंकि इलेक्शन कमेटी बन चुकी थी, पुराने कार्यकर्ता इलेक्शन में लगाया नहीं जा सकता। पुराने कार्यकर्ताओं को मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद उनको बोला गया कि आप लोग विधानसभा वाइज काम करें। सब लोग अपना विधानसभा वाइज अपना प्रचार प्रसार किया। मैं भी 7 विधानसभा में गया और किसी को अनदेखा नहीं किया गया, सारे लोग काम किए हैं। अब जीत हार की बात तो अब जनता करेगी ना, हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। कहा जा सकता है आपके पार्टी के उच्च न्यायालय ने सही डिसीजन नहीं लिया आपके अनुसार से? उच्च न्यायालय नहीं, पार्टी के जो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में टिकट जो बंटन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं आता। कहीं ना कहीं चूक हुई है, सब प्रदेश में नहीं, अलग अलग प्रदेश में कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं तो यदि सब जगह होता तो 29 में 29 कैसे जीतते, गुजरात कैसे जीतते, छत्तीसगढ़ कैसे जीतते? आपकी बातों का ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बंगाल में भाजपा का जो आला कमान है वो बंगाल में कम से कम जमीनी हकीकत से कटा हुआ है। यही तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल की जो आला कमान है, पश्चिम बंगाल के जो राज्य स्तर के कार्यकर्ता और नेता हैं, उनको फिर से सोचना होगा, मंथन करना होगा। यदि इस तरह का प्रक्रिया चलती रही पश्चिम बंगाल में तो 26 में कुछ होने वाला नहीं है। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति फिर यहाँ पहुँच जाएगी 26 में। इसलिए इस पर पूरा विचार करना होगा और सभी कार्यकर्ता को एक साथ सम्मान देते हुए काम करना होगा, तभी जाकर के पश्चिम बंगाल में सरकार आए हुए भाजपा में जो आए हैं, तृणमूल को छोड़कर जो भाजपा में आए, कहीं उनकी भी भूमिका रही है क्या इस कारण? हाँ, वो जो लोग आए हैं तृणमूल छोड़ के, कम बेसी उन लोगों ने काम किया है। काम तो सभी करेगा, जब भाजपा में आ जाएंगे तो काम करना ही पड़ेगा। यदि तृणमूल छोड़ के अर्जुन सिंह को टिकट मिल सकता है तो जो तृणमूल छोड़ के बीजेपी में वो काम नहीं कर सकते हैं, काम करना ही होगा ना। पार्टी कहीं कारण तो हार नहीं हुई है? नहीं, कारण हारने में उनका कोई हाथ नहीं है, हारने उनके कारण कोई हार नहीं हो सकती। हार होने का बहुत से कारण। पश्चिम बंगाल में अभी लक्की भंडार एक चल रहा है ऐसा, जो महिलाओं में एक आदर्श बन गया है लक्की भंडार, तो एक कारण ये भी हो सकता है पश्चिम बंगाल का। और तो हारने के बाद बहुत कुछ होता है। तो आप लोग स्वीकार कर रहे हैं कि तृणमूल लक्की भंडार देके अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही, खराब कर रही, मैं नहीं कह सकता। लक्की भंडार मिल रहा है महिलाओं को, गरीब लोगों को, तो अच्छी बात है। गरीब महिला को यदि 1000 रुपया मिले महीना में, 1200 रुपया मिले तो कौन सा बुरी बात है, मिलना ही चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार जो काम कर रही है, जैसे हम लोग आवास योजना, हम लोगों ने 55 लाख का घर बनवाया,
गैस कनेक्शन दिया। कोविड के दिनों में हम लोगों ने इंजेक्शन दिया 150 करोड़ लोगों को, नहीं तो आज भारतवर्ष में 101 करोड़ लोग ऐसे ही मर जाते हैं। उनको उजला गैस दिया, आवास दिया, बहुत कुछ हम लोगों ने दिया, बिजली पानी सब कुछ सुविधा दिया। पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल शिल्पांचल में भी वट सावित्री की पूजा की गई। आपको बता दें कि वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करते हुए वृक्ष के चारों तरफ पवित्र धागा बांधती हैं। ऐसी मान्यता है कि सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान को यमराज से बचाने के लिए वट वृक्ष की पूजा की थी। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। आज आसनसोल के शिल्पांचल के विभिन्न मंदिरों में महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। पति का लंबी उम्र के लिए। ऐसा क्या कारण रहा जो चीज का ये पूजा किया जाता है? सती सावित्री नाम का एक औरत थी, तो उसका पति का यमराज जो है प्राण छीन के ले जाने लगे थे। वो उनका पीछा वो कर रही थी, तो यमराज चल रहे थे आगे आगे, वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो चलते चलते वो थक गए, तो पूछे बेटी तुम मेरे पीछे काहे आ रही हो? तो यमराज जी पूछे सावित्री माता से, तो वो बोले कि आप मेरा पति के लिए जा रहे हैं, तो हम उनका बिना कैसे रहेंगे? तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम 3 वरदान मांगो। तो इसीलिए माँ सावित्री जो 3 वरदान मांगी थी उनसे, इसीलिए दिया था उनको 3 वरदान। इसीलिए चना का रूप में जो है ना सत्यवान जी का प्राण लौटाया था यमराज जी, इसीलिए चना भी बलवृक्ष देव को चढ़ाया जाता है। क्या बोले? भावना कुमारी। पति के लिए किया जाता है, ये वट सावित्री पूजा है। ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसमें सारे फल इसी समय, फल लीची सीजन का फल ही इसी समय मिलता है, इसीलिए यही सीजन का फल है। सो ये पूजा में सम्मिलित होता है। कितने सालों से कर रहे हैं? ये 18 साल से कर रहे हैं। क्या नाम है? निशा बर्नवाल। कौन सा पूजा कर रहे हैं? वट सावित्री इसलिए कर रहे हैं? पति के लिए किया जाता है, उनके लंबी आयु के लिए किया जाता है। आज आप लोग यहाँ पर क्या क्या करेंगे? वट सावित्री का पूजा किया जाएगा, फेरा किया जाएगा। आपका नाम? माधुरी साहब। ये व्रत किस लिए किया जाता है? हाँ, ये सौभाग्य के प्राप्ति के लिए स्त्रियां लोग करती है। इस 500 साल पहले से होते आ रहा है और सावित्री धर्म जब से कर रही है। 12 वर के सामने में ही उसके पति का जीवन दान के लिए वर मांगी धर्मराज से, और उसी समय से व्रत चलते आ रहा है। मेरा नाम स्वामी जगदीश नारायण, शिव मंदिर रोड, सुगिया ठाकुरबाड़ी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना
हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।